Housen Mangalsutra Limited IPO. And today we have with us Mr. Chetan Thadeshwar, Chairman and Managing Director, Mr. Viraj Thadeshwar, Director and CEO, Mr. Balraj Thadeshwar, Director and CEO, and Mr. Abhilash Sabhlewal, Director and CEO, Choice Capital Advisors Private Limited. श्रृंगार जैसी कंपनियां उनके लिए वो प्रोवाइड करती हैं। आज के दिन में शोरूम में आप देखते होंगे कि अगर किसी को भी शोरूम खोलना है तो उसमें हर तरीके की ज्वेलरी आपको मिलेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्राइडल, बैंगल्स, नेकलेसेस, डायमंड, गोल्ड, एलजीडी भी आ गया। तो हर प्रकार के प्रोडक्ट उनको रखने पड़ते हैं ताकि वो कस्टमर्स के पास वैरायटी शोकेस कर सकें। श्रृंगार जैसी कंपनियां स्पेशलाइज करती हैं, तो आपको ये जो मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट्स में ही मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी होती है। कोई प्लेन गोल्ड ज्वेलरी बनाता है, कोई खाली ब्राइडल बनाता है, कोई सिर्फ डायमंड का काम करता है। तो श्रृंगार उनमें से एक है। और मैं ये कहूँगा कि आज के दिन में 4 नंबर ऑफ B2B प्योर प्ले B2B मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खाली लिस्टेड हैं, जिसमें से श्रृंगार वन ऑफ द कंपनी जो लिस्ट हो रही है। उसके अलावा उत्सव गोल्ड एंड शांति गोल्ड है और एक स्काई गोल्ड है। तो दिस इज द 4th कंपनी गेटिंग लिस्टेड व्हिच इज इन प्योर B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग। एंड इनकी जो पेडिग्री है, इनकी जो क्लाइंटेल है, वो आज के दिन में किसी के पास नहीं। आने वाले जो प्रेजेंटेशन में आप इसको समझ पाएंगे। जो टोटल मार्केट है B2B का ज्वेलरी का पकड़े तो लगभग 6 लाख करोड़ का टोटल ज्वेलरी सेल होता है इंडिया में। उसमें से 35% ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जैसे मैंने आपको जो बताया, जो बड़े नाम हैं, तो ये लगभग 35 से 50 टोटल बड़े नाम हैं, जो बड़ी चेन्स है जो इंडिया में ज्वेलरी बेच रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लाखों की तादाद में छोटे ज्वेलर्स हैं, जो सिंगल स्टोर्स हैं, वो सब भी अपना धंधा कर रहे हैं। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं, ये बड़ी तेजी से अपने नए स्टोर खोल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा सैंको गोल्ड का आईपीओ आया, पीएम गार्डन का आईपीओ आया, ललिता ज्वेलर्स अभी फाइल किया है। तो ये सब ज्वेलर्स जो अपने स्टोर एक्सपेंशन में लगे हुए हैं, और इनको स्टोर एक्सपेंशन के लिए इनकी सबसे बड़ी जरूरत होती है उस स्टोर में माल पहुंचाना। वो माल बनाने का काम श्रृंगार जैसी कंपनियां करती हैं। तो बहुत महत्व है इस टाइप की कंपनियों का, और श्रृंगार का एक स्पेशल रोल है और स्पेशल प्लेस है, वो आने वाले प्रेजेंटेशन में अपन को समझ में आएगा। श्रृंगार कंपनी 1963 થી મારા ફાધરે આ કંપની ચાલુ કરી હતી અને 1982 થી હું આ કંપની સંભાળી રહ્યો છું। 2010 થી મારા છોકરાઓ આ કંપનીમાં મારી સાથે જોડાયા છે। જ્વેલરીનો આઈપીઓ એટલે જનરલી રિટેલ શોરૂમ લગભગ તમને ધ્યાનમાં આવે, પણ અમે બેકએન્ડના કલાકારો છીએ જે હિન્દુસ્તાનના જેટલા પણ મોટા લોકો જેમ કે તનિષ્ક, રિલાયન્સ, મલાબાર, જેટલી મોટી ચેન છે, કલ્યાણ, જેટલી બી તમે ચેનને જાણો છો, સેન્કો, ડીપી, જેટલી લિસ્ટેડ કંપની છે, અને એ લોકો બધા સાથે આપણે કામ કરીએ છીએ। પ્લસ જે રિજનલ ચેન હોય છે કે મહારાષ્ટ્રમાં બેન ગાર્ગિલ, વામન હરિભેટ છે, ગુજરાતની અંદર કલા મંદિર જેવા લોકો, આ લોકો રિટેલમાં એનું ફોકસ છે। પ્રોડક્શન, ડિઝાઇનિંગ, આ જેટલી જે કોમ્પ્લેક્સ છે આને અપડેટ કરવાનું કામ અમારું છે। દરેક કામ અત્યારે સુપર સ્પેશિયલાઇઝ થઈ ગયું છે। જે બેંગલવાળા હોય એ બેંગલમાં જેની માસ્ટરી હોય, એ રિટેલ હોય એને રિટેલમાં જેની માસ્ટરી કરવાની છે। એટલે આ જેટલી બી ઇન્ડિયામાં નેશનલ ચેન હોય કે રિજનલ ચેન હોય, રિજનલ ચેન એટલે છે 20થી વધારે શોરૂમ છે એને આપણે રિજનલ ચેન ગણીએ। પ્લસ સ્ટેન્ડ લોન બિલ્ડિંગ શોરૂમ્સ છે। એક જમાનામાં કલામંદિરમાં અહીંયા એક જ શોરૂમ હતો કોસંબામાં, અમે ત્યારથી એમના વેન્ડર છીએ। TBZ એક જ શોરૂમ હતો મુંબઈ ઝવેરી બજારમાં, અમે ત્યારના એમના વેન્ડર છીએ। એટલે અમારું કામ વર્ષોથી ફક્ત અને ફક્ત મંગળસૂત્રનું છે। અમે સોની પરિવારથી બિલોંગ કરીએ છીએ। એટલે આ જનરેશનમાં એવું હોય કે 1982માં જ્યારે હું આ શ્રૃંગારને જોઈન કર્યું ત્યારે હું 16-17 વર્ષનો હતો, અને ત્યારે તમામ જ્વેલરી બનાવો તો પહેલાં મને શીખવું પડે, કારણ કે મિસ્ત્રીનો દીકરો મિસ્ત્રી બને તો એને મિસ્ત્રી કામ। Shringar is a Shringar House of Mangalsutra. I am Viraj Thadeshwar, CEO. Shringar is basically a company whose main role is to design, manufacture and supply Mangalsutras to corporates, retailers and wholesalers. Today Shringar has more than 1,200 customer base all around the world. If we talk about the jewelry wholesale market, which stands currently at 3 lakh crores approximate, and it's set to reach up to 4 lakh 25,000 crores by calendar year 29.
out of which organized manufacturers are doing nearly 34,000 crores of revenue, and it is predicted to rise up to 48,000 crores by calendar year 29. So this is only 11% of the whole entire wholesale market. So the main factors which lead to rise of the jewelry industry today is the designing factor. Today, design has become the key role running the industry. Digital platforms are increasing and leading the revenue for several companies in B2C as well as B2B also, and most importantly, hallmarking. ये आपका रॉ मटेरियल आप कहाँ से लेते हैं, जैसे गोल्ड है और पर्ल्स, डायमंड्स वगैरह सब जो यूज़ करते हैं? गोल्ड बैंक से प्रिपेयर होता है, हम इंपोर्ट करते हैं ऐसे सेपा गोल्ड, और नहीं तो फिर बुलियन डीलर जो रेपुटेड होते हैं विद कस्टम नंबर के साथ। यही चीज़ें जो हमारी वो मेन सोर्स करना पड़ता है रॉ मटेरियल। बीड्स इज नेग्लिजिबल। आज 5 लाख का भी मंगलसूत्र हो तो 50-100 रुपये के भी बीड्स नहीं लगते, यानी कि जो भी रेवेन्यू है वो 99.7% वो गोल्ड से ही है। वो वैल्यू स्टोन्स, क्योंकि रियल डायमंड यूज नहीं करते हैं, मैक्स इज जर्कनिया ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें गोल्ड के सामने इस वैल्यू के अंदर कोई परसेंटेज भी नहीं आती। और आपकी प्राइस रेंज क्या होगी जी? हमारी प्राइस रेंज मैम अप्रॉक्सीमेटली 7-8 ग्राम से चालू होते हैं, यानी कि रिटेल में 1 लाख 1.25 लाख रुपये से चालू होगी। जैसे महाराष्ट्र में चलने वाले मंगलसूत्र 30-30 लाख रुपये के भी होता है, लेकिन जो सबसे हॉट सेलिंग प्राइस के जो मंगलसूत्र होते हैं वो 2 से 2.5 लाख